Good day, students. Let us start part B, games and sports. The first game we are going to discuss badminton. Let us start. History of badminton. Badminton game took its name from Badminton House in Gloucestershire, the home of Duke of Beaufort. The badminton developed from a similar game. Battledore or shuttlecock was played in China and Siam for centuries before modern era. The game was further developed in India and was called Puna, named after the city of Pune, where it was played by army officials. Badminton Association of England was formed in 1883 and framed some sets of rules for the game. Gloucestershire is now the base of International Badminton Federation (IBF). The IBF was founded in 1934. Understood? The World Championship has been held every 2 years since 1977. The first major IBF tournament, Thomas Cup, was held in 1948. Badminton was included in the Olympic Games in 1992 as Barcelona Olympics. The Badminton Association of India was formed in 1935. The first badminton tournament in India was held in 1929 in Punjab. It was known as the Punjab State Championship. The first national tournament was held in 1936 at Bombay. India became the member of IBF in 1938. Badminton was included in the Asian Games in 1962. Let us discuss in Hindi now. बैडमिंटन का इतिहास। बैडमिंटन खेल का नाम बैडमिंटन के घर ग्लूसेस्टरशायर से लिया गया है, जो ब्यूफोर्ट के ड्यूक का घर है। समझ गए? बैडमिंटन जो आज खेली जाती है, आज से कई सदियों पूर्व इससे मिलती जुलती खेल बैटलडोर अथवा कॉक से विकसित होकर चीन और सियाम में खेली जाती थी। ये बैडमिंटन का अग्रदूत एक शटलकॉक और लकड़ी के पैडल, जिससे एक बल्ला अथवा बैट डोर कहा जाता था, से खेला जाता था। इसके नियम कर्नल सिल्वी ने बनाए थे और ये बहुत तेज़ी से फैल गया। IBF की स्थापना 1934 में की गई। समझ गए? 1977 से प्रत्येक 2 वर्ष के बाद विश्व चैंपियनशिप करवाई जाती है। ओलंपिक में
बैडमिंटन 1972 और 1988 में लाई गई और 1992 में ये एक ओलंपिक खेल बन गई। भारत में बैडमिंटन की प्रथम प्रतियोगिता पंजाब राज्य में 1929 में करवाई गई। इसे पंजाब स्टेट चैंपियनशिप कहा जाता था। प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता 1936 में मुंबई में करवाई गई थी। भारत IBF का सदस्य 1938 में बना। 1962 में बैडमिंटन को एशियन खेलों में शामिल किया गया। तो ये था बैडमिंटन का संक्षिप्त इतिहास। आगे बढ़ें, ठीक है। लेटेस्ट रूल्स ऑफ द गेम। The first is service. The first service of a side in each game be made from the right hand service court. The receiver shall stand in the court diagonally opposite to the server. आगे बढ़ें। The shaft of the racket of server should face downwards while serving. खेल के नवीनतम नियम। इनमें सबसे पहले क्या करेंगे हम? सर्विस। प्रत्येक खेल में पहली सर्विस किसी भी ओर से दाएं हाथ की सर्विस कोर्ट से की जाती है। सर्विस रिसीव करने वाला कोर्ट में सर्वर के विपरीत तिरछा रहेगा। सर्वर के रैकेट का शाफ्ट सर्विस करते समय नीचे की ओर होना चाहिए। रूल्स का पता लग गया सर्विस का। आगे बढ़े। The service in singles. When the score of a server is an even number 2, 4, 6, 8, he shall serve from the right service court. Understood? When the score is an even number, the player shall serve from the right service court, and when the score of a server is an odd number 1, 3, 5, 7, he shall serve from left service court. सिंगल्स में सर्विस। जब सर्वर का स्कोर सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10 में होगा तब वह बाएं सर्विस कोर्ट से सर्विस करेगा, और जब सर्वर का स्कोर विषम संख्या में होगा 1, 3, 5, 7, 9 में होगा तो वह दाएं सर्विस कोर्ट से सर्विस करेगा। समझ गए आप लोग? चलिए अब करते हैं डबल्स में सर्विस क्या है। इन डबल्स only one player can serve from the team starting the game. Then the players take their chance of service, and then the service is again given to the team in service. हिंदी में जान लेते हैं। डबल्स में केवल खेल आरंभ करने के लिए एक खिलाड़ी टीम में से सर्विस कर सकता है। तब खिलाड़ी सर्विस का मौका लेगा, तब फिर सर्विस उस टीम को दे दी जाती है जो सर्विस में हो। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं।
The next is scoring. The point can be scored only by the player or team in service. अंक केवल खिलाड़ी अथवा टीम स्कोर करती है जो सर्विस में है। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैच। अ मैच कंसिस्ट्स ऑफ बेस्ट ऑफ 3 गेम्स। एनी प्लेयर और टीम that wins 2 games wins the match. Understood? हिंदी में जानते हैं, मैच सबसे अच्छी 3 गेमों का होता है। कोई भी खिलाड़ी अथवा टीम जो पहले 2 गेम जीत लेती है वे मैच जीत लेती है। आगे आपको समझ में? आगे बढ़ते हैं। फाउल्स। A foul is given if number 1 a server serves from above waist level. Second, a player jumps while serving. Third, a part of equipment of a player touches the net or the pole. Fourth, a player strikes the shuttle before it passes over to his side. The fifth, the service does not land diagonally in the opposite court. चलिए फॉल्स के लिए हिंदी में जान लेते हैं। फॉल कब दिया जाता है? यदि सर्वर कमर के ऊंचाई के ऊपर से सर्विस करता है। समझ गए? सर्विस करते समय खिलाड़ी उछलता है तब भी ये फॉल होता है। खिलाड़ी के उपकरण का भाग जाल अथवा पोल को स्पर्श कर जाता है तब भी इसे फॉल माना जाता है। खिलाड़ी शटल को दूसरी ओर जाने से पहले ही स्ट्राइक करता है तब भी ये फॉल है। और सर्विस विरोधी कोर्ट में तिरछी नहीं गिरती है तभी ये फॉल होता है। तो आपने फॉल्स के बारे में भी जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट, स्पेसिफिकेशन ऑफ कोर्ट। इन अदर वर्ड्स, डायमेंशंस ऑफ द कोर्ट। टिप्स टू रिमेंबर। द साइज ऑफ कोर्ट for the doubles 13.40 meters by 6.10 meters or in feet 44 by 20 feet. Understood? The size of court for single play 13.40 ml, length is the same, into 5.18 meters or 14 by 17 feet. The height of the net from the floor at the center 1.524 meters. The height of the net at the posts 1.55 meter. The breadth of net 760 millimeter. Weight of the shuttle is 4.74 grams to 5.50 grams. Number of feathers of shuttle is 16. हिंदी में जान लेते हैं। बैडमिंटन कोर्ट का आकार सिंगल्स के लिए 13.40 लंबाई में और 5.18 मीटर चौड़ाई में होता है, जिसे हम फीट में
कन्वर्ट करें तो 44 फुट और 17 फुट बनता है। बैडमिंटन कोर्ट का आकार डबल्स के लिए लंबाई वही रहेगी 13.40 मीटर और चौड़ाई में परिवर्तन होगा 6.10 मीटर, यानी 44 फीट और 20 फुट। नेट की चौड़ाई 760 मिलीमीटर होती है। नेट के मध्य की ऊंचाई 1.55 मीटर होती है। खंभों की ऊंचाई 1.55 मीटर होगी। शटल का भार 4.74 ग्राम से 5.5 ग्राम तक होता है। शटल के पंखों की संख्या 14 से 16 होती है। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़े। कोर्ट। The size of badminton court for doubles is 13.40 meters in length and 6.10 meters in width, 44 by 20 feet. And for singles, size of the court is 13.40 meters in length and 5.18 minutes in width, 44 by 17 feet. The court is divided into two equal halves from the center line. Here is a short service line marked both sides at the distance of 1.98 meters. There is a side gallery to both sides of full length of the court, 40 centimeters, and back gallery is marked on both ends, the size 72 centimeters. All the lines are included in the court, and the lines of the court are 40 mm in width. कोर्ट के बारे में हिंदी में जान लेते हैं। बैडमिंटन कोर्ट का आकार डबल्स के लिए 13.40 मीटर लंबा और 6.10 मीटर चौड़ा, 44 और 20 फुट होता है। और सिंगल्स के लिए इसका आकार है 13.40 मीटर लंबा और 5.18 मीटर चौड़ा। कोर्ट दो समान भागों में बटा होता है। मध्य रेखा से दोनों ओर एक छोटी सर्विस लाइन 1.98 मीटर की लगी होती है। कोर्ट की पूरी लंबाई के दोनों ओर एक साइड गैलरी होती है जो 40 सेंटीमीटर होती है और पीछे की गैलरी भी ऐसे ही दोनों ओर 72 सेंटीमीटर की होती है। सभी रेखाएं कोर्ट में ही शामिल हैं और कोर्ट की रेखाएं 40 मिलीमीटर तक चौड़ाई होती है। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। Posts and net. The poles shall be 1.55 meter in height on the sides. The post shall be placed on the double side lines. The net shall be made of fine cord of dark color and evenly thickness with a mesh of not less than 15 mm and not more than 20 mm. The net shall be 760 mm in depth and at least 6.1 meter wide. The top of the net shall be edged with a 75 mm white cloth tape doubled
over a cord or cable running through the top. The net in the center should be 1.52 524 meters. समझ गए? हिंदी में जानते हैं। खंभों की ऊंचाई 1.55 मीटर होगी। खंभे दोहरी साइड लाइनों पर लगे होंगे। ये मध्य रेखा पर और साइड गैलरी की बाहरी रेखा पर लगे होंगे। जाल पतली गाढ़े रंग की रस्सी से बना होगा और बराबर की मोटाई की रस्सी होगी। इसका जाल 15 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर के बीच होगा। जाल 760 मिलीमीटर गहरा और कम से कम 6.1 मीटर चौड़ा होगा। जाल के ऊपर 75 मिलीमीटर का किनारा सफ़ेद कपड़े की टेप से बना होगा, जो कि रस्सी के ऊपर पूरी लंबाई तक दोहरा होगा। ये टेप रस्सी अथवा केबल के ऊपर टिकी रहनी चाहिए। बीच में से जाल 1.524 मीटर का होगा। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। शटल। The shuttle weight is 4.74 grams to 5.50 grams, may be of natural or synthetic material. It shall have 16 feathers fixed in the base. Measured from the tip to top of the base, shuttle can be between 62 millimeter to 70 millimeter. The base of the shuttle shall be 25 millimeter to 28 millimeter in diameter and rounded at the bottom. शटल के बारे में भी जान लेते हैं। शटल का भार 4.74 से 5.5 ग्राम होगा, जो कि प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पदार्थ की बनी होगी, परंतु भार सहने की क्षमता में प्राकृतिक पंखों जैसे ही बनी होगी, जिसके कार्क के नीचे का भाग चमड़े की पतली परत से ढका होता है। इसमें 14 से 16 पंख लगे होंगे। ऊपरी किनारे से बेस के ऊपर तक शटल 62 मिलीमीटर से 70 मिलीमीटर की होगी। पंखों के किनारों से शटल की गोलाई 58 मिलीमीटर से 68 मिलीमीटर होगी। शटल के नीचे की गोलाई 25 मिलीमीटर से 28 मिलीमीटर के मध्य होगी और ये नीचे से गोलाकार होगी। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ें। आगे है फंडामेंटल स्किल्स। इम्पॉर्टेंट है ये भी, फंडामेंटल स्किल्स। सर्विस, हाई सर्विस, लो सर्विस, रिवर्स हैंड ड्राइव। सेकंड में स्किल है क्लियर्स, हाई क्लियर, लो क्लियर, ऑफेंसिव क्लियर। स्ट्रोक्स, फोरहैंड एंड बैकहैंड स्ट्रोक, लॉब, टॉस, क्लियर, ड्रॉप, स्मैश। फोरहैंड and backhand side arm strokes, drive. Forehand and backhand underarm strokes, net strokes. Forehand
and backhand cross court strokes. फंडामेंटल स्किल्स में मेन स्किल्स में आएगी सर्विस, जिसमें शामिल हैं ऊंची सर्विस, निचली सर्विस, रिवर्स हैंड ड्राइव, क्लियर्स, हाई क्लियर है, लो क्लियर और आक्रामक क्लियर। स्ट्रोक, फोर हैंड और बैक हैंड स्ट्रोक, जिसमें शामिल हैं लो, लॉब, टॉस, क्लियर आदि। फोर हैंड और बैक हैंड साइड आर्म स्ट्रोक में ड्राइव। फोर हैंड एंड बैक हैंड अंडर आर्म स्ट्रोक्स नेट स्ट्रोक्स। फोर हैंड एंड बैक हैंड क्रॉस कोर्ट स्ट्रोक। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम स्किल्स। हाई सर्विस। द सर्वर स्टैंड्स इन द सर्विंग कोर्ट with body weight onto the front leg. Then he directs the shuttle to the head of the racket with the other hand. And as shuttle moves down, he hits it hard and high diagonally. आगे बढ़ते हैं। Repeating once again. High service. The server stands in the serving court with body weight onto the front leg. Then he directs the shuttle to the head of the racket with the other hand. And as shuttle moves down, he hits it hard and high diagonally in the court of the opponent, so that it falls near the long service line for singles. Understood? हिंदी में जान लेते हैं। ये हिंदी में जानते हैं। ऊंची सर्विस। सर्वर कोर्ट में खड़ा होकर अगली टांग पर शरीर का भार डालता है। तब वह दूसरे हाथ से शटल को रैकेट के हेड की तरफ करता है। ज्यों ही शटल नीचे जाती है, वह उसको जोर से और ऊंचा मारता है, जो विरोधी कोर्ट की में तिरछी जाती है, जो सिंगल्स के लिए लंबी सर्विस लाइन के निकट गिरती है। समझ गए आप लोग? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंची सर्विस के बारे में आपने जान लिया। अब करेंगे लो सर्विस। इन दिस टाइप ऑफ सर्विस नॉट मच फ्लाइट इज गिवन टू शटल। द शटल इज हिट इन सच अ वे that it crosses over the net. The shuttle should fall just behind the short service line. ये हिंदी में जान लेते हैं इसको। इस प्रकार की सर्विस में शटल को अधिक फ्लाइट नहीं दी जाती। शटल इस प्रकार गिरती है कि ये नेट को पार कर जाए। शटल शॉर्ट सर्विस लाइन के बिल्कुल पीछे गिरनी चाहिए। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। स्मैश। दिस स्ट्रोक इज प्लेड इन सच अ वे दैट शटल गोज शार्पली डाउनवर्ड्स टू द अपोनेंट्स कोर्ट। द शटल इज हिट हार्ड by swinging the arm and straightening it at elbow. स्मैश के बारे में जानेंगे। ये स्ट्रोक इस प्रकार खेला जाता है कि शटल तेजी से विरोधी कोर्ट में नीचे की ओर जाती है। शटल को
बाजू को घुमाकर इसको कोहनी से सीधा करके जोर से मारा जाता है। स्मैश के बारे में समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप। दिस स्ट्रोक इज प्लेड इन सच अ वे दैट the shuttle just crosses over the net and falls into the opponent's court. The player gently hits the shuttle with quick action of arm and with flip action of the wrist. ड्रॉप के बारे में जानते हैं। ये स्ट्रोक इस प्रकार खेला जाता है कि शटल जाल को पटक कर जाए और विरोधी कोर्ट में गिरे। खिलाड़ी धीरे से शटल को हाथ की तीव्र क्रिया और गुट की फ्लिक क्रिया से मारता है। समझ में आ गया आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट है। रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। बैक हैंड, any stroke made on the side of the body opposite the racket side. शरीर के एक ओर रैकेट के उल्टी ओर लगाया गया स्ट्रोक बैक हैंड स्ट्रोक कहलाता है। समझ गए आप लोग। आगे बढ़े। कैरी, एन इलीगल शॉट where the shuttle does not rebound immediately off the racket at the point of contact. स्पर्श होने पर शटल का रैकेट से तुरंत अलग ना होने वाला एक गलत शॉट होता है। समझ गए आप लोग। बर्ड, वर्ड, another name for the shuttle. शटल को वर्ड भी कहा जाता है, पक्षी। समझ गए। आगे बढ़े। क्लियर, ए हाई शॉट और लॉब, एक ऊंचा शॉट अथवा लॉब जो बैक लाइन के पास ही गिरता है। समझ गए। आगे बढ़े। फुट फॉल्ट, illegal position or movement of the feet by either the server or receiver. सर्वर अथवा रिसीवर द्वारा पाँव को गलत तरीके से रखना फुट फॉल्ट कहलाता है। समझ गए आप लोग। आगे चलें। सर्वर, द प्लेयर who puts the shuttle into play. सर्वर वह खिलाड़ी है जो शटल को मारकर खेल आरंभ करता है, खेल शुरू करता है। आगे बढ़े। थ्रो, एन इलीगल शॉट इन विच द शटल इज कैरिड और थ्रोन बाय द रैकेट। ये एक गलत शॉट है जिसमें शटल को रैकेट से धकेला अथवा फेंका जाता है। समझ में आ रही है आप लोगों के। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट, व्हेन द रेफरी इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर द सर्विस और इट डन विदाउट रेफरीज सिग्नल, इट मे कॉल्ड लेट बाय द रेफरी. Point is disallowed for the service. In other words, let is called by the referee to stop the game as a result of accidental hindrance. let के बारे में जान लेते हैं। जब अंपायर सर्विस से संतुष्ट ना हो अथवा सर्विस अंपायर के संकेत के बिना ही कर दी जाए तो अंपायर द्वारा
लेट कहा जाता है। ऐसी सर्विस पर पॉइंट नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में, खेल में अचानक रुकावट पर अंपायर द्वारा खेल रोकने के लिए लेट शब्द कहा जाता है। आगे समझ में आपके? आगे बढ़ते हैं। ड्यूस। एट ड्यूस स्कोर इज इक्वल, मे बी 13 ऑल और 14 ऑल। ड्यूस पर स्कोर समान होता है, जैसे 13-13 पे बराबर हो या 14-14 पे बराबर हो तो ड्यूस कहला जाता है। आगे बढ़े। लॉन्ग सर्विस। द लॉन्ग सर्विस फॉर सिंगल्स एट द एंड ऑफ द कोर्ट। द डिस्टेंस फॉर लॉन्ग सर्विस इज 9.5 फीट। ये सिंगल्स में कोर्ट के अंत तक मारी गई लंबी सर्विस होती है। इसके लिए दूरी नेट से 9 फुट 5 इंच तक की होती है। डबल्स में इसकी दूरी नेट से 22 फुट की होती है। समझ गए आप? द नेक्स्ट इज फर्स्ट हैंड। In doubles game, the first service is known as first hand. डबल्स खेल में पहली सर्विस को फर्स्ट हैंड कहा जाता है। लव ऑल। टू द स्टार्ट ऑफ द गेम एंड आफ्टर ड्यूस इट इज कॉल्ड लव ऑल। खेल के आरंभ में या ड्यूस के बाद शुरू करने के लिए लव ऑल कहा जाता है। समझ गए आप लोग? चलिए, आपने टर्मिनोलॉजी के बारे में भी समझ लिया। अब हम करेंगे इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स। इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स: थॉमस कप, 555 वर्ल्ड कप, वेल्स वर्ल्ड कप, चाइना कप, उवेर कप, शाहजी कुरैशी कप, इट्स ओनली फॉर नेशनल जूनियर वीमेन, कॉनिका कप, योनेक्स कप, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, यूरोपियन कप. This game is also included in the Asian Games, Commonwealth Games and the Olympics. ये गेम एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक में भी शामिल हो चुकी है। टूर्नामेंट आपने नोट कर लिए सब। चलिए आप देखते हैं इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़। सूजी सुशांति, जोको सुप्रियांतो, एलन वर्डे, कैप्रियाती एट्सेट्रा। ये नाम भी आपको याद करने आप लोगों ने। ये टूर्नामेंट भी 4 या 5 टूर्नामेंट पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। पर्सनैलिटीज़ 2-3 पर्सनैलिटीज़ के नाम आ सकते हैं और स्पोर्ट्स अवार्डीज़ के नाम भी आ सकते हैं। चलिए स्पोर्ट्स अवार्डीज़ कर लेते हैं। स्पोर्ट्स अवार्डीज़: N.M. नाटेकर 1961, मीना शाह 1962, दिनेश कुमार 1965, दीपू घोष 1960, D.V. तांबे 1970, प्रकाश पादुकोण 1972, अमी घई 1976, सैयद मोदी 1980-81,
पार्थो गांगुली मधुमिता 1982, राजीव बग्गा 1991, अर्पणा पोपट 1999, पुल्लेला गोपीचंद 2000, जॉर्ज थॉमस 2001, साइना नेहवाल 2009, ज्वाला गट्टा पीवी संधू 2013, वी डिजू 2014, श्रीकांत 2015। ये तो थे अर्जुन अवार्डीज। इसमें 5 या 4 नाम आपको याद करने हैं, ठीक है। अब द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए जो नाम गया है वो है पुल्लेला गोपीचंद। द्रोणाचार्य अवार्ड इस गेम में मिला है पुल्लेला गोपीचंद, ठीक है। तो ये थे आप सब, आज आपने कर लिया है बैडमिंटन, ठीक है। तो अब मैं आपको बैडमिंटन कोर्ट की एक फिगर डाल देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये बैडमिंटन कोर्ट को आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छे ढंग से और सुंदर बना के ड्रॉ करना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। तो बैडमिंटन हमने आज ख़त्म कर लिया। थैंक यू।